अगला है ऑल सिरेमिक क्रम्स। इंडिकेशंस क्या है इसकी? अगर हाईली एस्थेटिक रिक्वायरमेंट है, पेशेंट मुझे बिल्कुल भी मेटल नजर नहीं आना चाहिए दांत के अंदर, तो इसके अंदर आप फुल सिरेमिक क्रम्स दोगे। कंसिडरेबल प्रॉक्सिमल केरीज हो, प्रॉक्सिमल सरफेस के ऊपर केरीज काफी ज्यादा लोग सिरेमिक क्रम्स हम दे सकते हैं। इंसाइजल एज इज रीजनेबली इंटैक्ट, इंसाइजल एज इंटैक्ट हो। एंडोडोंटिकली ट्रीटेड टीथ विद पोस्ट एंड कोर्स, इसके लिए हम सिरेमिक दे सकते हैं। फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ occlusal roads. Contraindication when superior strength is warranted and metal ceramic crown is more appropriate. अगर जो ना ज्यादा स्ट्रेंथ चाहिए हो, बाइट फोर्स ज्यादा हो पेशेंट की, तो उसके अंदर हम ये नहीं देंगे फुल सिरेमिक क्राउन। हाई केरीज इंडेक्स, अगर पेशेंट का जो ना केरीज इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें हम नहीं देंगे सिरेमिक क्राउन्स। Insufficient coronal tooth tooth structure for support. थिन है टीथ फेशियल लिंगुअली, यानी बाहर से लेके अंदर तक दांत जो है थिन है। इरोजन के केसेस में यूजुअली नजर आते हैं आपको। अनफेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ occlusal road और ब्रक्सिज्म के जिस केसेस हैं उसके अंदर हम नहीं देंगे, क्योंकि जब भी पेशेंट ने बाइट करना कुछ करना कि पोर्सलिन का मटेरियल है वो बहुत ब्रिटल होता है, तो उससे फ्रैक्चर हो जाता है। तो इस केस सिनेरियो में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है फुल सिरेमिक्स। Composite filling won't be adequate. Ceramics are liable to fracture if more than 2 mm is unsupported. अगर 2 mm से ज्यादा सिरेमिक अगर unsupported है तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है। Advantages and disadvantages. Advantages is aesthetically unsurpassed. Good tissue response even for subgingival margins. ये जरा सीधा सीधा ये जो advantages disadvantages जो लेक्चर में जो सीधी चीजें समझने वाला इसमें ऐसा जितना नहीं है, 2-3 पॉइंट्स हैं वो आगे आ जाते हैं। A disadvantage: reduced strength in comparison to metal ceramic crowns. Proper preparation extremely crucial है। Among the least conservative preparations है brittle in nature. So tooth structure काफी ज़्यादा remove करना पड़ता है, 2 mm at least. Preparation steps कौन से? Again, depth of the grooves, incisal reduction. Anteriors के लिए usually ज़्यादा use करते हैं, तो इसलिए इसने यहाँ पे incisal reduction की बात की है। इसमें taper diamond use करेंगे approximately 1.3 mm deep, 1.3 mm deep to allow for additional reduction during finishing perpendicular to the long axis of the opposing tooth. Opposing tooth के long axis पे हो। Incisal reduction taper diamond के साथ करना है। पहले grooves देनी है incisal reduction में, ठीक है, taper diamond के साथ। Clearance 1.5, check excursions, दांत पेशेंट के मूव करवाने बंद करवा के, incisal guidance वगैरह देखनी है, lateral movements check करवानी है। Depth of grooves for facial reduction, taper diamond, depth of 0.8 mm needed for additional reduction during finishing. Facial reduction कितनी करोगे taper diamond के साथ? Reduction of 1.2 mm needed, 2 planes as per metal ceramic crown preparation. Facial 1.2 mm needed. Facial reduction की जो depth grooves में आप दोगे depth of 0.8 mm. Reduce कितना करना है? 1.2 mm. Depth grooves and lingual reduction. Lingual side पे आपने कौन सा use करना है? Tapered and football shaped diamonds. Initial depth 0.8. Recreate concave configuration. Do not maintain any convex configurations. Convex configuration अगर वो दोगे तो अगर आपके दांत का स्ट्रक्चर यूं करके है ना, ठीक है, अगर ये वाली configuration रखोगे तो यहाँ पे अंडरकट एरिया आ जाएगा, तो ये path of insertion, path of removal में issue cause कर सकता है. So you have to make it flattened जब prepare करोगे, ठीक है, थोड़ा सा rounded off रखोगे, undercuts आपने नहीं देना. Parallel to the cervical, अच्छा, depth grooves for cingulum reduction, cingulum के reduce taper diamond use करोगे, parallel to the cervical aspect of facial preparation. Cervical aspect जो है facial preparation के, उसके आपने parallel रखना है. 1 mm of reduction, shoulder follows free gingival margin. Lingual shoulder की preparation कैसे करोगे? Square tipped diamond के साथ. Rounded shoulder 1 mm wide, minimum, minimize peaks and valleys, 90 degree के वो surface angle, 90 डिग्री के एंगल हो जो आपने लिंगुअल शोल्डर देना है. शोल्डर्स में आपने 90 डिग्री के एंगल ही रखने हैं दोनों साइड पे.
फिनिशिंग फाइन ग्रेड डायमंड और कार्बाइड के साथ, ऑल सरफेस स्मूथ एंड कंटिन्यूअस, नो अनसपोर्टेड एनामल और 90 डिग्री का केओ सरफेस साइकिल होना चाहिए। ठीक है, राउंडेड, नोट द राउंडेड इंटरनल लाइन एंगल्स। इंटरनल लाइन एंगल्स जो हैं ये वाली, ये थोड़ी सी राउंडेड है। ठीक हो गया। अब शोल्डर जॉइंट रखा हुआ है, यहाँ पे शोल्डर जॉइंट है स्लाइटली राउंडेड है, लेकिन यहाँ पे जो सपोर्ट ले रहा है टूथ स्ट्रक्चर के साथ वो बिल्कुल फ्लैटेड है। 1.5 millimeter reduction, 1 millimeter reduction minimum on the facial and lingual aspects. अब अपोजिंग साइड के जो दांत होंगे उसकी जो ना आपने कांटेक्ट खत्म नहीं करना, आपने सेंट्रिक जो उसकी क्लोजन है कॉन्टैक्ट्स जो है अब बेस्ट कन्फाइंड टू द मिडिल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस। मिडिल थर्ड ऑफ द लिंगुअल सरफेस पे आप कांटेक्ट करें लोअर वाला दांत। अगर आप इसको नीचे वाले दांत को ग्राइंड कर दोगे तो क्या होगा कि ये सुप्रा इरप्ट कर सकता है क्योंकि कांटेक्ट नहीं अपोजिंग दांत के साथ, और ये मूवमेंट्स बेसिकली सारा ये आपको फ्रैक्चर कर सकता है, डिसहार्मनी कॉज कर सकता है, क्लूजन आपकी खराब कर सकता है। तो फ्यूचर इरप्शन may lead to new protrusive interfaces, interferences और precipitate करेगा फ्रैक्चर को। अब मार्जिनल डिजाइन शुड रिजल्ट इन फेवरेबल स्ट्रेस सिस्टम। अब देखो यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बना हुआ है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा टेपरिंग है, तो इस पे जब फोर्स अप्लाई हो रही थी तो एज से जो है फ्रैक्चर होने के चांसेस थे क्योंकि फोर्स डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्ली नहीं हुई थी। अपोजिंग साइड की जो ना न्यूटन की थर्ड लॉ याद है, एवरी एक्शन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, तो यहाँ पे फोर्सेस इक्वल हो रही है, लेकिन यहाँ पे जब फोर्स अप्लाई होती है तो शेयरिंग स्ट्रेस पीस पे पड़ती है। जो आपका सिरेमिक मटेरियल होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, शेयर स्ट्रेस नहीं बर्दाश्त कर सकता। जब इस पे कोई अपोजिंग डायरेक्शन में फोर्स होगी तो फ्रैक्चर होने के चांसेस है, यहाँ पे सर्वाइकल एरिया से फ्रैक्चर हो गया। चॉइस ऑफ मटेरियल क्या है, पोर्सलिन है क्या चीज, टाइप ऑफ सिरेमिक है conventional low fusing feldspathic porcelain is always used for the porcelain part of porcelain fused to metal restoration। ठीक है, ये सारी चीजें पिछली दफा भी कर चुके हैं। अब पोर्सलिन रेस्टोरेशन आर मेड बाय सिंटरिंग। सिंटरिंग क्या बला है, बेसिकली आप इसको हीट करते हो, इतना हीट करते हो कि ये ग्लॉसी हो जाता है और मूवेबल हो जाता है, लेकिन लिक्विड कंप्लीटली नहीं होता। प्लास्टिक स्टेट में आ जाता है लेकिन कंप्लीटली लिक्विड और फ्लूइड स्टेट में नहीं होता, विस्कोसिटी इसमें रहती है जब इसको हीट और प्रेशर के साथ अप्लाई करते हैं। The process of compacting and forming a solid mass of material by heat or pressure without melting it to its point of liquefaction। Heat और pressure apply किया और liquefaction यानी कि liquid जो है form में लाने से पहले ही उसको place कर दिया। Sintered porcelain by nature is weak as it is porous। Conventional porcelain को हम all ceramic rounds में क्यों नहीं use करते, क्योंकि जब आप सिंटरिंग करते हो तो पोरस होता है और वीक बाय द वे इट्स मेड। ठीक है, हैंड सिंटरिंग विद अ वैक्यूम, इट इज पोरस वंस मेड, साइड्स ऑफ फ्रैक्चर करते हैं और ग्लासी फेस। पोर्सलिन इज ब्रिटल बाय केमिकल नेचर बिकॉज ऑफ इट्स ग्लासी फेस। तो क्रिस्टल्स इसमें डालते हैं आपके पोर्सलिन के अंदर ताकि इनकी प्रॉपर्टी इंप्रूव हो जाए। ल्यूसाइट 35, ये बेसिकली इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज के विकर्स हार्डनेस टेस्ट है, फ्रैक्चर टफनेस है, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ है। ल्यूसाइट 35% जब डालते हैं तो ये प्रॉपर्टीज आती हैं, लिथियम डाइसिलिकेट डालते हैं तो ये प्रॉपर्टीज इंप्रूव हो रही हैं, हार्डनेस इंप्रूव हुई, फ्रैक्चर टफनेस इंप्रूव हुई, फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई। आजकल सुन रहे हो जिरकोनिया, ये जिरकोनिया वो जिरकोनिया है क्या भला, तो उसमें अगर आप देखो फ्रैक्चर स्ट्रेंथ इसकी 900 है, फ्रैक्चर टफनेस इसकी 8 to 10.3 है, विकर हार्डनेस 8.8 to 11.8, तो कंपैरेटिवली हाई स्ट्रेंथ है इसकी, इसलिए जिरकोनिया आजकल प्रेफर करें क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज जो है they are better than the traditional porcelains। ठीक है, अब मटेरियल को मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं, सिरेमिक्स को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन रीइंफोर्समेंट के साथ, केमिकल स्ट्रेंथनिंग के साथ और स्ट्रेस इंड्यूस्ड ट्रांसफॉर्मेशन के साथ। ठीक हो गया, हाई प्रोपोर्शन ऑफ क्रिस्टलाइन फेस इनटू द सिरेमिक मटेरियल टू इंप्रूव रेजिस्टेंस टू क्रैक प्रोपगेशन। इसमें याद रखने वाले क्रिस्टलाइन रीइंफोर्समेंट से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस हो रही है क्रैक प्रोपगेशन से। केमिकल स्ट्रेंथनिंग से क्या हो रहा है, अल्कलीज larger ions below the strain point of the ceramic material। जब जो है क्या नाम है इसकी केमिकल स्ट्रेंथनिंग कर रहे हो, केमिकल्स में प्लेस कर रहे हो, तो इसके अंदर स्मॉल अल्कलीज जो है लार्जर आयंस को स्ट्रेन पॉइंट से ले आता है, एक्सचेंज करता है बेसिकली।
मटेरियल के साथ रिएक्ट करेगा केमिकली और जो वीकर पोर्शंस हैं उसको स्ट्रेंथन करता है. पॉलीक्रिस्टलाइन सिरेमिक सच एज जिरकोनिया क्या करेगा ये? ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन टेट्रागोनल एंड मोनोक्लिनिक जिरकोनिया इज accompanied by increase in volume. Stress can trigger the transformation from tetragonal to monoclinical zirconia, thereby leading to strengthening as a result of increase in grain volume in the vicinity of the crack tip. Grain क्या होता है? जब माइक्रोस्कोपिकली आप किसी मटेरियल को देखते हो तो ग्रेन साइजेस होते हैं. जब वो क्रिस्टलाइज करता है डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ ग्रेन साइज करता है. टेम्परिंग के अंदर आपने सुना होगा टेम्परिंग क्या चीज होती है. उसमें ग्रेन साइज के जो है पार्टिकल्स जो है वो फ्रीज करने होते हैं जिसकी वजह से मेटल के स्ट्रेंथ आती है. कुछ लार्ज ग्रेन साइज होते हैं, कुछ स्मॉल ग्रेन साइज होते हैं. लार्ज ग्रेन साइज के अपनी प्रॉपर्टीज हैं, जो स्मॉलर ग्रेन साइज है उसके अंदर मूवमेंट जो है ओवर द क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो ग्रेन्स है वो स्लाइडिंग मोशन आ सकती है, तो मटेरियल की प्रॉपर्टी इटसेल्फ को इफेक्ट करेगा. स्ट्रेस करोजन को प्रिवेंट करना, chemical reaction between water and the ceramic at the tip of the strength controlled crack which results in an increase in crack size. Captech system stress corrosion को prevent करना है आपने. glazing के साथ कर सकते हो, smooth surface होगी, less resistance when the patient is biting or chewing or वैसे अपने दांतों के साथ खेल रहा हो. Sintering in a vacuum, air bubbles porosity कम करने के लिए. Avoid sintering altogether. Heat pressed ceramics or milled ceramics. कैट कैम सिस्टम वगैरह जो है ना उसमें ये चीजें आती हैं. तो सिंटरिंग में क्या हो रहा है, आप एक लेयर लगाते हो, कोट लगाते हो पोर्सलिन का, हीट करते हो वैक्यूम के अंदर, फिर एक और लगाते हो पोर्सलिन का, लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय लेयर, नेल पॉलिश की तरह आप कोट करते हो दांत के स्ट्रक्चर को. उसके बाद फिर आप सिंटरिंग प्रोसीजर करते हो. तो जो आपके हीट प्रेस सिरेमिक्स है, मिल्ड सिरेमिक्स है, ये पहले से आपके पास ब्लॉक फॉर्म में आते हैं जो आप कट करते हो, कार्व करते हो किस्म का मिलिंग मशीन्स के साथ. Glazing, impervious layer of coating of glassy substance which has been fused to the ceramic body through firing. Firing क्या होते हैं? ओवन के अंदर आप उसको रखते हो, प्लेस करते हो, जो सरफेस की लेयर होती है वो ग्लेज कर जाती है. डोनट्स के ऊपर ग्लेजिंग नहीं होती जिस तरह शुगर की कोट की लगाते हो ग्लेज, या फिर नेल पॉलिश अगर आपकी अच्छी लगी तो फिर एक सिल्वर क्लियर कोट लगाते हो. पेंट अगर आप करते हो तो एंड पे एक सरफेस प्रोटेक्टिव कोट लगाते हो उसका मीडियम का. ये सारी चीज. क्लिनिकल स्ट्रेंथनिंग कैसे कर सकते हो? Bonded versus cementation. Glass ceramics can be etched and bonded to the tooth using resin cements, thereby improving the strength, gain, tooth restoration, bond. Non-glass ceramics जो हैं cannot be etched as good as glass ceramics and neither can the bonding agent bond to it. So a layer of cement separates from the tooth. ठीक है? या आप बॉन्डिंग करोगे या सीमेंटेशन करोगे. सीमेंट में आप सीमेंट मटेरियल्स जो हैं जीआईसी वगैरह, जिंक फॉस्फेट वगैरह, बॉन्डिंग में आपके रीजंस आ जाएंगे. ये डिफरेंट ऑल सिरेमिक सिस्टम्स हैं. मार्जिनल फेट कैप्टेक सिस्टम है, सिरेमको, इम्प्रेस, ब्रक्से, ये बेसिकली ब्रांड के नाम है, उनकी डिफरेंट स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज वगैरह कंपेयर की है. सेम चीज. अब टाइप ऑफ डेंटल सिरेमिक्स कौन से हैं आपके? ग्लास सिरेमिक्स विद फिलर्स और ग्लास फ्री सिरेमिक्स पॉलीक्रिस्टलाइन. ग्लास सिरेमिक्स में फेल्सपैथिक है, फेल्सपार यूज होता है इसमें. फिलर्स में इसमें ल्यूसाइट इन्फ्यूज्ड लिथियम डाइसिलिकेट, ग्लास इनफिल्ट्रेटेड. ग्लास फ्री सिरेमिक्स में आपके अलुमिना और जिरकोनिया के crowns. Glass ceramics, traditional feldspathic porcelain, glossy matrix with lucite crystals, typically just for veneers and veneering metal ceramics. These ceramics, a traditional feldspathic porcelain glossy matrix with lucite crystal, typically just used for veneers, veneering metal ceramics. These ceramics are typically crafted using powder and liquid by hand. हाथों के साथ ही काम करने होते हैं इसमें. Basically coat करते हैं जिस तरह आप nail polish लगाते हो. मेटल सिरेमिक वर्सेस कैप्टेक सिस्टम. ये कैप्टेक सिस्टम है जो मिल्ड हुआ हुआ है, और मेटल सिरेमिक जो है इन कंपैरिजन एस्थेटिकली ज्यादा बेहतर लगता है. ये एक मोनोटोन यूजुअली लग रहा होता है. अनलेस और अनटिल जो आपको पोर्सलिन की जो सिरेमिक लेयर बना रहा है वो आउट क्लास किस्म का तरीके इस्तेमाल कर रहा हो.
Glass ceramics with fillers, same glass matrix now filled with particle strength. They're used for all kinds of restoration, including बेसिकली इसमें आपको जो चीज याद रखने वाली है ना, वो क्या है कि ये एक तो कैट कैम सिस्टम के थ्रू जो ना आप मिलिंग करते हो या लॉस्ट वैक्स टेक्निक मेटल कोपिंग की जिस तरह बनाते हैं ना, ये बेसिकली प्रेस करते हैं उसके अंदर अपार्टमेंट्स के अंदर। इसकी एग्जांपल्स हैं आपकी ये रिसाइड रीइंफोर्स्ड लिथियम डाइसिलिकेट और ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड सीमेंट्स। अगर आप इसकी क्लासिफिकेशन जो यूजुअली नहीं पूछते, अगर पूछते तो उसमें आपने ये लिखना पार्टिकल्स इसमें डालते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेंथ इंप्रूव करने के लिए। लिथियम डाइसिलिकेट का क्राउन है ये IPSE मैक्स। ग्लास फ्री सिरेमिक जिसमें प्रोलिक्रिस्टल जिरकोनिया के क्राउन्स आ रहे हैं आपके, ठीक है। और जब जिरकोनिया के आप लगा रहे हो ना, इसमें बेसिकली क्या चीज है ये ग्लास फ्री सिरेमिक्स, बेसिकली जिरकोनिया, जिरकोनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन दोनों चीजों की ये सिंटर्ड जो है ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, स्पेशली जिरकोनिया, लेकिन इनमें डाउनसाइड क्या है कि सिंगल कोट सिंगल कलर होते हैं। अगर आपने इंटीरियरली विनियर्स वगैरह देने हैं, एस्थेटिक बनाना है या इनको आउटक्लास बनाना है, तो उस केस सिनेरियो में आप जो है एक ट्रांसलूसेंट सिरेमिक की लेयर लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका सेंटर में कोर उसका है जिरकोनिया का, इसको ट्रांसलूसेंट फिर एक लेयर आ जाए टूथ स्ट्रक्चर के ऊपर, तो एस्थेटिकली ये इंप्रूवमेंट आ जाती है इसके अंदर। एस्थेटिकली जो है इंप्रूवमेंट्स लाने के लिए आपको ये हरकतें करनी पड़ती हैं। अब जैसे कोर मटेरियल है, बॉडी पोर्सिलीन है और इंसाइजल पोर्सिलीन है, एक डिफरेंट लेयर ऑफ पोर्सिलीन। अब ऑल सिरेमिक सिस्टम रिलाई ऑन हाई स्ट्रेंथ नॉन एस्थेटिक कोर। जो आपका कोर मटेरियल है नॉन एस्थेटिक होता है, जो स्ट्रेंथ दे रहा है। सम रिलाई ऑन हाई स्ट्रेंथ एस्थेटिक मटेरियल, ठीक है। अब the strength of the veneered zirconia crown is derived from high strength zirconia core। ये जो कोर है सेंटर में जो लोकेटेड है वो जिरकोनिया की बनी हुई है, onto which aesthetic body and incisal porcines are fired। फिर aesthetic body येलोइश कलर की आपने बॉडी दी थी है ताकि वो डेंटिन को शो करे, और सबसे टॉप पे आपकी आ जाएगी incisal porcine जो आपके टूथ के स्ट्रक्चर का कलर देगी। This analogs the metal ceramic crown whose strength are derived from metal substrate। अब ये जिरकोनिया का कोर है, ऊपर आपके ट्रांसलूसेंट लेयर ऑफ एनामल या इंसाइजल पोर्सिलीन लगती है इसमें, ठीक हो गया। जिरकोनिया मोनोलिथिक, सिंगल आपका जिरकोनिया का क्राउन है जो मिल किया हुआ है, सिंगल लग रहा है, कोई भी ग्लॉसी अपीयरेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंगल टोन कलर नजर आ रहा है। इसके अंदर देखो ऐसा लग रहा है कि ये इनामल है, इसके नीचे डेंटिन नजर आ रही है, नेचुरल लगती है चीज। इसके सिनेरियो में सिंगल एक ब्लॉक है। मोनोलिथिक क्राउन एक लेयर है, बायलेयर क्राउन जो है आपकी दो कोर है और ऊपर उसके ऊपर विनियर्स है। लिथियम डाइसिलिकेट, ग्लास इन्फिल्ट्रेटेड, एल्यूमिना, जिरकोनिया, ठीक है। इसमें ल्यूसाइड इनफोर्स इम्प्रेस वन लिथियम डाइसिलिकेट ईमैक्स और जिरकोनिया रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड मोनोलिथिक क्राउन्स के लिए, ठीक हो गया। लैब टेक्निक्स कौन से? सिंटरिंग, मिलिंग और हीट प्रेस। कैट कैम सिस्टम है, इंप्रेशन लेता है पेशेंट के मुंह में, वो जाता है आपके कैट कैम रिकॉर्डर में, वो रिकॉर्ड करके सारी फिर उसकी अक्लूजन वर्किंग सॉफ्टवेयर मॉडल है, वो अक्लूजन चेक करता है, बाइट किस तरह होगी, फिर उसी हिसाब से वो मिलिंग करता है इस तरह के सिरेमिक ब्लॉक्स की। मिलिंग में क्या हो रहा है, इस सिरेमिक ब्लॉक्स को कट कर रहे हैं विद बर्स, और ये सारा ऑटोमेटेड होता है, ठीक हो गया। ये मिलिंग हो गई, इसकी फिर सिंटरिंग करके या जो भी इसके ऊपर लेयर्स वगैरह आपने लगानी है वो इसमें करते हैं। हीट प्रेस टेक्निक है, आपने वही कास्ट वगैरह बना के उसको प्रेस करते हैं, उसके अंदर हीट करना है, प्रेस करना है, उसके बाद कट करना है, इस तरह का ये फाइनल प्रोडक्ट बनता है। फिक्स्ड पार्शियल डेंचर्स के लिए आपको स्पेशल कंसिडरेशन क्या है? यू यूजिंग सिरेमिक विद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेस्ट सूटेड फॉर द क्लिनिकल सिचुएशन, जिसमें लिथियम डाइसिलिकेट सिरेमिक्स और जिरकोनिया सिरेमिक्स। स्पैन नॉट मोर देन 3 यूनिट्स, 3 यूनिट से ज्यादा ना हो। Connectors should have regard for biology, mechanics, and aesthetics. The recommended dimension is 4 by 4 millimeter instead of 3 by 4 millimeter. Connectors की diameters है। Flexure strength zirconia की सबसे ज्यादा, फेल्ड स्पार्टेक की सबसे कम है। zirconia का फ्रेमवर्क का जो कोर है उसके ऊपर फिट टूथ का स्ट्रक्चर आ गया। 3 यूनिट इंटीरियर फिक्स पार्शियल डेंचर
लिथियम डाइसिलिकेट सिरेमिक विद फेल्डस्पैथिक वेनियर। ये लिथियम डाइसिलिकेट आपका सिरेमिक का कोट लगा हुआ इसके ऊपर, ठीक हो गया, और ऊपर लगा दिए फेल्डस्पैथिक वेनियर। कोर है आपका लिथियम डाइसिलिकेट सिलिकेट सिरेमिक, ऊपर फिर फेल्डस्पैथिक पोर्सलीन डाला, वेनियर डाला, और फिर उसकी ग्लेजिंग और ये सारा कुछ किया।